नमो वच्चायाणं नमो लोवे सर्वसाम् नमो वच्चाय। हाँ, બપોરની સભાની અંદર આપણે પ્રશ્ન ઉત્તરનું સ્વરૂપ તત્વ ચર્ચાના રૂપમાં આપણે રાખ્યું છે. અહીંયા આગળ કેટલાક પ્રશ્નો જિજ્ઞાસાવાળા આવેલા છે, તો તેના ખુલાસા આપણે જોઈને એક 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 આગળ વધીશું. અને કોઈને નવો પ્રશ્ન હોય તો નવો પ્રશ્ન લખીને અને સપનાબેન કે પ્રજ્ઞેશભાઈને તમે વોટ્સઅપ પર મોકલજો, કારણ કે મારી પાસે ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીંયા આગળ આવેલા છે. તો કોઈનું મતલબ લાઈનસર હું ક્રમથી મતલબ કે એવી રીતે સમય પ્રમાણે એવી રીતે હું સેટિંગ કરતો જઈશ. એટલે બીજા કોઈ વચ્ચે નવા પ્રશ્નો હોય, જે પ્રશ્નનો ખુલાસો થાય એની અંદર પ્રશ્નો હોય તો એ જ વખતે પૂછજો, નહીતર નવો પ્રશ્ન હોય તો તમે વોટ્સઅપ પર મોકલી શકો છો. તેથી બીજા બધાના પણ આવેલા પ્રશ્નોનું આપણે સમાધાન કરી શકીએ. હવે એમાં પહેલો પ્રશ્ન એવો આવ્યો છે કે આગમ પદ્ધતિ એટલે શું અને અધ્યાત્મ પદ્ધતિ એટલે શું? અને એની સાથે સાથે એક બેનનો બી પ્રશ્ન છે કે આગમમાંથી અધ્યાત્મમાં કેવી રીતે જવું. જો સૌથી પહેલા તો આગમની પરિભાષા શું છે એ પહેલા આપણે સમજીએ. તો જીનાગમની અંદર આગમની જે પરિભાષા બતાવવામાં આવી છે તો કે છે કે આપ્ત પુરુષોના વચનને આગમ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ આપ્તનો અર્થ થાય છે મહાપુરુષ, અને એનો એક અલગ રીતે આપણે અર્થ કરીએ. બીજી રીતે મહાપુરુષનો અર્થ છે રત્નકરણ સાવકાચારમાં આપ્યો છે અરિયંત ભગવાન. તો અરિયંત ભગવાનના જે વચનો છે તેને જ અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા તો આગમ કહેવામાં આવે છે. હવે વાત એ છે કે એક એની સાથે બીજો બી શબ્દ પ્રયોગ જોવા મળે છે, અધ્યાત્મ. અને પ્રવચનકારોના પ્રવચનોની અંદર પણ આ આગમની શૈલી છે, આ અધ્યાત્મ શૈલી છે ઇત્યાદિ વગેરે વગેરે. મતલબ કે એવા બી કથનો સાંભળવા મળે છે. એમ પણ કહેવામાં આવે કે અધ્યાત્મમાં આ વિવક્ષા મુખ્ય નથી, અથવા તો અધ્યાત્મની અંદર જેને કહેવાય કે દ્રષ્ટિ પ્રદાન કથનો કરવામાં આવે છે, આગમની અંદર જ્ઞાન પ્રદાન કથનો કરવામાં આવે છે. તો આવી ટાઈપના પણ જવાબોમાં મતલબ કે જોવામાં આવે છે આગમ અને અધ્યાત્મ સંબંધી. તેને આખું સર્વાંગ રૂપથી કેવી રીતે એનું સ્વરૂપ સમજવું, અને જે વિદ્વાનોની અંદર જે આ પ્રમાણેના શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે તો કે છે કે તેને પણ કેવી રીતે અપેક્ષાઓથી સમજવું, તે આપણે જરા સમજીશું. પહેલા સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે જીનાગમની અંદર કોઈ પણ વિષય છે, ચાહે તે આગમની શૈલી વાળો હોય કે ચાહે અધ્યાત્મની શૈલી વાળો હોય, પણ એ બધાને જ ખરેખર આગમ કહેવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વાત તો એ છે. મતલબ કે તમે જે આગમ અધ્યાત્મ પણ કહો છો, તે હકીકતની અંદર અધ્યાત્મ પણ ખરેખર એક આગમનો જ ભેદ છે. એટલે શું કે દાખલા તરીકે જિનેન્દ્ર ભગવાનની જે વાણી કરે છે તો તેની અંદર તો બધી જ વાત આવે છે. બધી જ વાત આવે છે એટલે શું કે બધી વાત એટલે એમના વાણીમાં તો 6 દ્રવ્યની પણ વાત આવે, એમની વાણીમાં તો જેને કહેવાય દ્વીપ સમુદ્રોની પણ વાત આવે, અને એ જ સમાન કોટીએ તેમની વાણીમાં શુદ્ધાત્માની પણ વાત આવે. આમ કેમ? કારણ કે અનઅક્ષરી ભાષા, એની અંદર તો સર્વાંગે બધું જ જેને કહેવાય કે એક સાથે અહીંયા આગળ આવી જાય છે. તો જેટલી પણ વાણી છે, જે પણ કંઈ છે એમના માધ્યમથી જે પણ કંઈ બતાવવામાં આવે છે તો એ બધાને જ અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે આગમ કહેવામાં આવે છે. તમને ખબર હોય તો કેટલીક ગાથામાં પણ એવી રીતે શબ્દનો પ્રયોગ સમયસાર વગેરેમાં પણ અથવા તો પ્રવચનસારમાં કદાચ કરવામાં આવ્યો છે કે આમ કેવડી ભગવાને આગમમાં કહ્યું છે. તમારું ધ્યાન ગયું હશે. તો હવે અધ્યાત્મમાં કહ્યું છે કે આગમમાં કહ્યું છે? નહીં, આગમ એટલે કે છે કે તે એમના જે વચનો છે તેની અંદર તે વાત અહીંયા આગળ કહેવામાં આવી છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે સર્વાંગે બધી જ વાત સૌથી પહેલા તો આગમના અંતર્ગત જ ગર્ભિત છે. હવે જે ફાટા પડે છે તે ફાટા શૈલીઓના ભેદના પડે છે, વિષય અપેક્ષાએ શૈલીઓના ભેદના પડે છે.
એની અંદર જે આગમની એક શૈલી અથવા તો આગમ અને એમાંથી અધ્યાત્મ એટલે શું કે દાખલા તરીકે સરળતાથી આપણે જઈએ તો 6 દ્રવ્યોનું જેની અંદર વર્ણન કરવામાં આવે તો કે છે કે તેને આગમની શૈલી કહેવામાં આવે છે. અને 6 દ્રવ્યમાંથી આત્માના પ્રયોજનની મુખ્યતા માટે સારભૂત જીવ દ્રવ્યનું વર્ણન કરવામાં આવે તો તેને આધ્યાત્મિક ગ્રંથ કહેવામાં આવે છે, અધ્યાત્મની શૈલી કહેવામાં આવે છે. આ પણ એક અત્યારે આપણે સ્થૂળતાથી સૂક્ષ્મતાની ઓર જઈ રહ્યા છીએ, એ જરા સમજજો. કારણ કે શૈલીઓના ભેદમાં પણ આવા બદલાવ જોવામાં આવશે. ફરીથી બોલું છું, જેની અંદર 6 દ્રવ્યોનું નિરૂપણ છે તેને આગમ શૈલીના રૂપમાં જોવામાં આવશે. જેની અંદર 6 દ્રવ્યમાંથી જીવ દ્રવ્યનું નિરૂપણ જોવામાં આવશે તો કે છે કે તેને અધ્યાત્મની શૈલીના રૂપમાં જોવામાં આવશે. ત્યારબાદ જીવ દ્રવ્યનું જે નિરૂપણ, એ જીવ દ્રવ્યને સંયોગના માધ્યમથી બતાવવામાં આવે તો કે છે કે તેને આગમની શૈલી કહેવામાં આવે છે. સંયોગના માધ્યમથી એટલે શું કે દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ જીવને કર્મની સાપેક્ષતાથી એનું જ્ઞાન કરાવવું, કર્મના સંયોગ વાળો બતાવવો કે જીવ 8 કર્મ વાળો છે તો કે છે કે તે આગમ શૈલી થઈ જશે. ત્યારબાદ જીવના જે અહીંયા આગળ વિકારી રાગ દ્વેષના પરિણામ વાળો અથવા તો અહીંયા આગળ જીવની જે અનેક પ્રકારની કર્મની વિચિત્રતામાં ઉદયમાં જેવી જેવી જે અવસ્થાઓ થાય છે તો કે છે કે એવા પ્રકારનો જીવ તેનું વર્ણન કરવું તો તે બધી પણ અહીંયા આગળ આગમની શૈલીના અંતર્ગત જશે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ ગુણ સ્થાનમાં પણ જીવનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, માર્ગણા સ્થાનમાં પણ જીવનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તો આમ જીવને જીવ સ્થાન, માર્ગણા સ્થાન, ગુણ સ્થાન તો કે છે કે ઇત્યાદિ વાળો બધો બતાવવો તો તે બધી અહીંયા આગળ આગમની શૈલીના અંતર્ગત જોવામાં આવશે. ત્યારબાદ જીવની આ શરીર અથવા તો પૂદગલ સાથે જે નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધતા વાળી અહીંયા આગળ નિમિત્ત નૈમિતિકના રૂપમાં કરતા કર્મ સંબંધ વાળી જેટલી પણ જીનાગમની અંદર શૈલી જોવા મળશે તો તે બધી શૈલી પણ આગમના શૈલીના અંતર્ગત જોવામાં આવશે. આમ આપણે જોયું કે આ બધાની અંદર આચાર્ય દેવને આગમની શૈલીમાં જીવની સિદ્ધિ કરાવી છે, 6 દ્રવ્યની સિદ્ધિ કરાવી છે, જીવનું સ્વરૂપ સામાન્યપણે કેવા પ્રકારનું છે તેની સિદ્ધિ કરાવી છે, જીવ કેવી કેવી અવસ્થાઓમાં રહ્યો છે તો કે છે કે તેની સિદ્ધિ કરાવી છે. એનાથી ઓર આગળ બંધ મોક્ષ વાળો જીવની સ્વરૂપનું વર્ણન તે પણ ખરેખર આગમની શૈલીની અંદર જશે. હકીકતની અંદર 7 તત્વોનું સ્વરૂપ પણ ખરેખર આગમની શૈલીના અંતર્ગત જ જશે. આમ આગમનું જે પેટ છે તો કે છે કે ઘણું મોટું છે. હવે આ જે આગમનું જે બધું જે પેટ જે ઘણું મોટું છે તો કે છે કે તેની અંદર જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક જીવ બેસેલો છે. જો કે આગમ વાળો જીવ અને અધ્યાત્મ વાળો જીવ કોઈ જીવ બે નથી, જીવ તો એક જ છે, પણ તેનું નિરૂપણ બે રીતે કરવામાં આવે છે. એક તો એકદમ જ જ્ઞાન પ્રધાન શૈલીથી જ્ઞાન કરાવવા માટે, એની સત્તાનો સતનો સ્વીકાર કરાવવા માટે અનેક પ્રકારથી આવી રીતે ઉદયની વિચિત્રતાથી અથવા તો સંયોગના માધ્યમથી તેનું જે પણ કઈ નિરૂપણ છે તે બધું આગમ શૈલી એવો શબ્દનો પ્રયોગ આપણે એને સમજીએ છીએ. હવે આવી વાત અધ્યાત્મની, તો અધ્યાત્મ કોને કહેવાશે તો કે છે કે અધ્યાત્મ એને કહેવાશે કે જેમ તમે 6 દ્રવ્યમાંથી સારભૂત જીવ દ્રવ્યને લીધો એમ અહીંયા આગળ જીવ દ્રવ્ય અને એમાં જે સારભૂત કોણ તો કે છે કે શુદ્ધાત્મા એટલે કે શુદ્ધ જીવ તો કે છે કે તેનું જેમાં વિશેષ રૂપથી નિરૂપણ કરવામાં આવે તો કે છે કે તેને અધ્યાત્મ શૈલી કહેવામાં આવે છે. બીજી સાદી સરળ ભાષામાં વાત કરું તો દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને ન કર્મ એટલે છે કે તેનાથી રહિત શુદ્ધાત્માની જે પણ કોઈ ચર્ચા છે તે બધી અહીંયા આગળ અધ્યાત્મ શૈલીના અંતર્ગત જોવામાં આવે છે. પણ હવે અહીંયા આગળ જરા બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે અધ્યાત્મ શૈલીની અંદર પણ અનેક શૈલીઓ જોવામાં આવે છે ગ્રંથોના માધ્યમથી. જે ઘણી શૈલીઓ જે જોવામાં આવશે કે તેની અંદર અધ્યાત્મની અંદર જ જે દૃષ્ટિ પ્રધાન શૈલીની પણ ચર્ચા જોવામાં આવશે તો તે પણ અધ્યાત્મક શૈલી જ કહેવામાં આવશે.
અને બીજી એક જ્ઞાન પ્રધાન શૈલી પણ જોવામાં આવશે, તે પણ અહીંયા આગળ અધ્યાત્મક શૈલીના અંતર્ગત જશે. એટલે શું, હજી બરાબર ન સમજ્યા, જરા સાંભળજો. દાખલા તરીકે પાંચે પરમાગમ છે, પાંચે પરમાગમ. તો મને તમે એમ કહેશો કે પાંચે પરમાગમ જે કુંદકુંદ ભગવાનના જે પ્રસિદ્ધ છે તે આગમ શૈલી વાળા છે કે અધ્યાત્મ શૈલી વાળા છે? ચલો તમારામાંથી કોણ પ્રશ્નનો જવાબ આપશે? જેને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મતલબ કે ટ્રાય કરે, બીજા બી કરી શકે. આ તો એક જનરલ વાત કરું છું. રસિકભાઈ નો ક્વેશ્ચન હતો, પણ આજે રસિકભાઈ નથી. હા, કોઈ વાંધો નથી. पांचों अध्यात्म है, हाँ, पांचों अध्यात्म के ग्रंथ है। શું કહો છો? पांचों अध्यात्म के ग्रंथ हैं। हाँ, अभी सुनो कि हम जो ऐसा कहते हैं ना पांचों अध्यात्म के ग्रंथ है, तो जो वो एक अपेक्षा से ऐसे भी कह ही सकते हैं, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक शैली का और प्रयोग हम कर सकते हैं। हाँ, पंचास्ती काय में जैसे तो द्रव्य वो ज्यादा आगम शैली मिलती है, थोड़ी बहुत इस तरह से फर्क भी है, पर मुख्य रूप से अध्यात्म ही प्रयोजन है सब में। हाँ, बरोबर है, बात आपकी बिल्कुल सही है। इसको इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग हम करेंगे ना, तो शब्द का जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि अध्यात्म गर्भित आगम, ऐसा भी शब्द प्रयोग करेंगे। और दूसरा शब्द प्रयोग ऐसा करेंगे कि आगम गर्भित अध्यात्म। आप समझे? जैसे कि आपने जो पंचास्तिकाय बताया, तो इसमें भी 6 द्रव्य का वर्णन आया, और 6 द्रव्य का वर्णन करने के बाद मोक्ष मार्ग वाला भी प्रकरण आचार्य देव ने स्वयं ने वहां पर ऐड कर दिया। तो ये आगम को साथ में रखकर अध्यात्म परोसा गया। ठीक इसी ही तरह आप प्रवचन सारजी में भी चले जाओगे, तो प्रवचन सारजी के अंदर भी आप चले जाओगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? तो जैसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में भी जैसे 6 द्रव्य का निरूपण आया, बराबर, और फिर 6 द्रव्य का निरूपण बताने के बाद आचार्य देव ने क्या किया? तो क्या आचार्य देव ने यहाँ पर ज्ञान के विभाग अधिकार बताकर वो पूरा का पूरा फिर एक अध्यात्म का विषय खोल दिया। और फिर आगे भी जाओगे तो चरणान योग की चूलिका के अंदर वो व्यवहार नहीं से मतलब कि उसकी जो चर्या वगैरह का क्या स्वरूप है, उसकी प्रधानता से उसकी चर्चा की। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है कि कहीं कहीं पर आगम गर्भित अध्यात्म शैली मिलेगी और कहीं कहीं पर अध्यात्म गर्भित आगम वाली शैली मिलेगी। प्रयोजन की प्रधानता होती है। प्रधानता किसकी है? तो पांचों परमागम में, तो पांचों परमागम में शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होवे? तो क्या आचार्य देव को वो प्रदान है, इसलिए अत्यंत शॉर्ट भाषा के अंदर अध्यात्म प्रदान ऐसा शब्द प्रयोग हम कर सकते हैं, बिल्कुल उचित है, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन अभी जो प्रश्न है ना कि जैसे आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, तो तात्पर्य यह है कि दोनों पद्धतियां जहां जहां पर होगी वहां वहां पर इस प्रकार की, खास करके मूल रूप से परमागमों में के अंदर, तो क्योंकि ये दोनों पद्धतियां मिलती है, इसका भी कारण बाद में देखते हैं, क्यों ऐसा वो भी बताते हैं, देखते हैं मतलब। और जैसे कि प्योर करणान युग के विषय में चले जाओ, करणान युग के विषय में मतलब क्या? करणान युग के विषय के अंदर मैं धवला वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। हकीकत के अंदर करणान युग के विषय के अंदर ये तिलोय पणत्ति वगैरह जो ग्रंथ होते हैं, द्वीप समुद्र वगैरह के 3 लोक की वगैरह की जो चर्चा देखी जाती है, असल में मूल में उसको करणान युग के ग्रंथ विशेष रूप से, विशेष अपेक्षा से बातें उसको कहा जाता है। ऐसा ऐसा आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर वो शैलियों का जो प्रयोग है 5 परमागम में, तो इसके अंदर मतलब कि एक दूसरे को लिए हुए, आगम अध्यात्म को लिए हुए प्रयोजन को साधने की मतलब वहां पर कोशिश की गई है। अभी देखो, मुझे दूसरा बताना है कि हम जो चर्चा भी कर रहे थे ना, इसमें आगम शैली का क्राइटेरिया कितना और अध्यात्म शैली का क्राइटेरिया कितना। तो जैसे कि हम स्थूलता से देखते हैं, तो जैसे कर्म वाला और शरीर वाला वहां से उठाकर यहाँ पर आए। अभी जैसे आप नियम सार में आ जाओ, अभी नियम सार में बोलो किसकी चर्चा है? तो नियम सार के अंदर प्रधान रूप से किसकी चर्चा मिलेगी? अभी मैं दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कॉमन बात कर रहा हूँ। जैसे कि निर्मल पर्याय से परिणमित आत्मा की मुलाकात मिलेगी। तो अब मुझे आप ये बताओ कि निर्मल पर्याय से परिणमित जो आत्मा है वो आगम शैली में जाएगा कि वो अध्यात्म शैली में जाएगा?
अभी देखना कि जैसे हमने थोड़े समय पहला ऐसा मैंने कहा था कि अध्यात्म शैली की भी दो शैलियां देखने में आती है। एक दृष्टि प्रधान शैली देखने में आती है और एक ज्ञान प्रधान शैली देखने में आती है। तो अब अध्यात्म और अध्यात्म में ही जब यहाँ पर जैसे समय सार के अंदर छठी गाथा की चर्चा कर ली, हमने 320 नंबर की गाथा की चर्चा कर ली, शुद्ध आत्मा की प्रधानता से चर्चा कर ली, या तो हम अबद्ध स्पर्श स्वाभाविक भगवान आत्मा की चर्चा कर ली, तो ये सब दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा की चर्चा वो अध्यात्म शैली के अंतर्गत हम रखेंगे। और जो नियम सार के अंदर जो कारण नियम कार्य नियम, तो वो कार्य नियम की प्रधानता से वहां पर जो चर्चा है नियम सार, वो शब्द ही ये बताता है। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कौन से? निश्चय। तो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो कहते हैं कि ये नियम बराबर है कि नहीं? तो कहते हैं कि और सार शब्द लगाकर व्यवहार रत्न त्रय का यहाँ पर कहते हैं कि परिहार किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वहां पर ये नियम सार के अंदर निर्मल पर्याय, शुद्ध निर्मल पर्याय से परिणमित जो आत्मा की जो चर्चा है, तो वो भी अध्यात्म शैली में जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी वो जो अध्यात्म शैली में जाएगी तो वो किस में जाएगी? अध्यात्म शैली के अंतर्गत, वो ज्ञान प्रदान शैली के अंतर्गत वो अध्यात्म शैली में उसकी फाइल खुलेगी, कहने का मतलब। और सुनो, जब हम वो निर्मल पर्याय से परिणमित आत्मा को हम एक अपेक्षा से अध्यात्म शैली में भी ले सकते हैं, और वही निर्मल परिणाम से आत्मा जो है इसको एक विवक्षा से परम अध्यात्म शैली की अपेक्षा से, जब त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जो कारण परमात्मा है उसको जब हम परम अध्यात्म शैली के अंतर्गत जब हम रखेंगे, तो उसकी अपेक्षा से ये निर्मल पर्याय से परिणमित आत्मा को भी उसकी अपेक्षा से हम आगम की शैली में रख देंगे। ख्याल में आया भाई सबको क्या कहना चाहते हैं? फिर से થોડું પાછું જરાક हाँ, फिर से मैं बोलता हूँ। हाँ, जरा थोड़ा ध्यान देना। हाँ, देखो बात ऐसी होती है, ये शैलियों के भेद है, शैलियों के प्रकार है। मालूम है ये सब समझने की इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें शैलियों का भी एक पक्ष हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो आगम शैली में का है, अरे नहीं ये तो प्योर अध्यात्म है। बात ऐसी नहीं होती है। आगम शैली में कहा है तो कोई इसका वेटेज कम होता है, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि शुरुआती इसलिए की कि केवड़ी भगवान की वाणी में तो सब कुछ आता है और सबको आगम कहते हैं, और ये जो अध्यात्म है वो तो आगम का एक भेद है, मतलब पार्ट है, वो पूरा आगम नहीं, आगम का एक पार्ट है, कहने का मतलब। अब बात ऐसी होती है कि जब आगम और अध्यात्म इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो ये सारे कथन विवक्षाकृत हो जाते हैं। तो विवक्षाकृत के अंदर विवक्षा लगाकर जब हम बात करते हैं, तो जब हम यहाँ पर निर्मल पर्याय से परिणमित आत्मा की जब हम बात करेंगे, तो निर्मल पर्याय को साथ में लेकर आत्मा की बात करते हैं ना, तो वो वहां पर भी आत्मा का अधिकार हुआ। अध्यात्म शैली मतलब जहां आत्मा का अधिकार होता है उसको अध्यात्म शैली कहते हैं। तो यहाँ पर वो जो निर्मल परिणमन, वो भी स्वभाव रूप से परिणमा है, इसलिए स्वभाव रूप से परिणमन करता होने के कारण उसको भी आत्मा के खाते में डालकर अभेद विवक्षा से उसको आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो शैली है वो भी एक अध्यात्म शैली में ही जाएगा, और अध्यात्म शैली के अंदर कहां पर खत्मनी करेंगे? तो क्या हम ज्ञान प्रदान शैली के अंदर उसकी खत्मनी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक दृष्टि प्रदान शैली भी हमें मिलती है समयसार ग्रंथ के अंदर, तो समयसार ग्रंथ के अंदर भी मिलेगी, नियम सार की 38 नंबर की गाथा में भी हमें मिलेगी। तो वहां पर ये जो दृष्टि प्रदान वाली जो शैलियां है, तो कहते हैं कि उसको भी अध्यात्म शैली में लेते हैं। तो और ये जो निर्मल पर्याय से परिणमित आत्मा है, तो क्योंकि उसको भी हम अध्यात्म शैली में लेते हैं, लेकिन उस आत्मा को हम दृष्टि प्रदान शैली से हम समझते हैं, और निर्मल पर्याय से परिणमित आत्मा को हम ज्ञान प्रदान शैली से समझते हैं। ये दो शैली हो गई। अभी इसके अंदर क्या अपेक्षा लगाते हैं कि जब हम परम अध्यात्म की अपेक्षा से जब बात करेंगे, तो वहां पर पर्याय मात्र को गौण कर दिया जाता है समझने के लिए। तो पर्याय मात्र को जब हम गौण करते हैं, तो ये जितने भी पर्याय वाले कथन आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से, परम अध्यात्म शैली की अपेक्षा से, तो कि वो भी आगम शैली के अंदर यहाँ पर चली जाएगी। क्योंकि अध्यात्म शैली का ग्राफ्ट ऐसा रहता है कि वो सूक्ष्मता की और जाता हुआ होता है।
और आगम शैली का ग्राफ जाएगा तो हम ऐसा जाते जाएंगे तो स्थूल शैली की ओर चलता जाएगा। ये अध्यात्म शैली में इस प्रकार से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगा और आगम शैली में यहाँ पर स्थूलता की ओर बढ़ेगा। ये स्थूलता और सूक्ष्मता हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा से हम कहते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर है कि नहीं कहने का मतलब। क्योंकि स्थूलता से उस चीज को कोई छद्मस्त जीव क्षयोक्षम वाला सामान्यपने समझ सकता है, कर्म वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा सरलता से वो समझ सकता है, इसलिए उसको स्थूलता वाली शैली कहने में आता है। और अंदर में यहाँ पर पर्याय वाला आत्मा, अभी पर्याय कैसे पकड़े, तो यहाँ पर पर्याय बिना का आत्मा, तो ये जो शैलियां होती है वो ज्ञान में थोड़ी सूक्ष्म पड़ती है, इसलिए वो सूक्ष्मता की और यहाँ पर कहने का मतलब वो शैलियां हमें लेके जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं तो वो सारी इस प्रकार की आत्मा की प्रधानता वाली जो शैली है वो अध्यात्म की ओर हमें लेके जाती है। इस प्रकार से ये आगम शैली और एक अध्यात्म शैली जो पद्धतियां होती है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब वो बताया जाता है, बराबर। अब बात ऐसी है कि आगम में से अध्यात्म में कैसे आए, ये प्रयोजनभूत यहाँ पर अपना एक दूसरा भी प्रश्न आया हुआ है। तो आगम में से अध्यात्म में किस प्रकार से आए, इसके लिए ही हमारे पास श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान में एक सुंदर और बढ़िया जो व्यवस्था है मुख्य गौण करने की, तो कहते हैं कि हम मुख्य गौण करके आगम में से अध्यात्म में यहाँ पर कहते हैं कि आ सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर स्थूलता की ओर से देखा तो उसमें से आप गौण करते आओ, गौण करते आओ, कर्म को मुख्य करके आत्मा को देखा, फिर इसको गौण करके राग को मुख्य करके देखा तो कर्म गौण हो गया, फिर राग को गौण करके गुण और पर्याय को मुख्य करके आत्मा का परिचय करो तो ये राग गौण हो गया। इसके बाद गुण भेद और पर्याय भेद को भी गौण करके शुद्धात्मा को लक्ष्य करते हैं, विषय बनाते हैं, तो वहां पर परिणति के अंदर अध्यात्म जन्म लेता है। तो इस प्रकार से आगम में से अध्यात्म में कैसे आवे, तो क्योंकि आगम में से अध्यात्म में इस प्रकार से, इसको थोड़ी नई भाषा में मैं प्रयोग करूंगा तो कहते हैं कि व्यवहार नहीं के जितने भी विषय है उन सबको जैसे जैसे गौण करते जाते हैं, ठीक है, इसी तरह हम अध्यात्म की ओर मतलब कि हमारा मुख हो जाता है और यहाँ पर अध्यात्म की ओर हम प्रवेश करते जाते हैं। तो इसलिए सबसे सुंदर व्यवस्था है कि जितने भी यहाँ पर पर्याय भेद के विषय, संयोग वाले, शरीर वाले, इस वाला जो आत्मा कोई प्रयोजन बस आचार्य देव ने हमको बताया था, तो कहते हैं कि इन सब भावों को अपने ज्ञान के अंदर गौण करें। और जो शुद्ध नई का जो विषय है, तो क्या वो शुद्ध नई का विषय को यहाँ शुद्ध नई द्वारा अपने आत्मा को ग्रहण करने पर यहाँ पर क्या हो जाता है कि जीव आगम में से अध्यात्म में आता है। जैसे कि सुबह भी चर्चा चली थी कि आत्मा को कर्ता कहे कि अकर्ता कहे, तो हमने ये सारी कर्ता अकर्ता की जो भी मीमांसा हमने जो पढ़ी जानी, तो उसमें आगम शैली का भी एक एरिया आ गया और कुछ हमारा ज्ञानी धर्मात्मा पर घटित करेंगे तो अध्यात्म शैली का भी थोड़ा सा एरिया आ जाता है। लेकिन हम परम अध्यात्म की ओर कैसे पहुंचेंगे कि भगवान आत्मा को अपेक्षा से सर्वपने, अपेक्षा लगाकर बोलता हूं, अकर्ता हम देखते हैं जो दृष्टि का विषय है, तो क्योंकि उसको जब हम साधते हैं, उसको जब हम अहम पने का विषय बनाएंगे तो यहाँ पर परिणति में क्या हो जाता है, अध्यात्म जन्म लेता है। अध्यात्म जन्म लेता है मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की यहाँ पर उपलब्धि होती है। तो आगम में से अध्यात्म, हकीकत में आगम भी इसलिए जानना है क्योंकि हमें अध्यात्म में आना है। मूल बात तो ये, क्योंकि अध्यात्म में आए बिना हमारा दुख दूर नहीं होता है और हमारा प्रयोजन है दुख दूर हो करना और सुख की प्राप्ति करना। इसलिए आप आगम का कितना भी ज्ञान कर लो, पंडित टोडरमल जी का एक वचन जो प्रवचन सार जी में से उन्होंने रेफरेंस दिया है वो जिंदगी पर याद रखने जैसा है कि यहाँ पर कहते हैं कि आगम धर कितना भी पढ़ लेवे, भिन्न वस्तु भूत ज्ञान स्वाभावी भगवान आत्मा का वो ज्ञान करना वही प्रयोजन है। तो यहाँ पर कहते हैं उसको छोड़कर कितना भी आगम का अभ्यास हो, लेकिन उसमें से अगर अध्यात्म नहीं ग्रहण करते हैं तो वो आगम का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। पंडित जी की स्टाइल मैं बोलूं तो तत्वार श्रद्धान, अगर जीव आत्मा का अनुभव नहीं करता है तो यहाँ पर कहते हैं कि ये विकल्पात्मक वाला तत्वार श्रद्धान जो आगम शैली में जितना भी उसका मतलब के खुलासा आया हुआ है, तो क्योंकि वो जितना भी आगम ज्ञान है वो कार्यकारी होता नहीं है। किसमें कार्यकारी नहीं होता है, जीव के प्रयोजन की सिद्धि करने में कार्यकारी होता नहीं है।
इसका अर्थ आगम ज्ञान को उड़ाया नहीं है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से प्रमाण करने को जब चौथी गाथा में कहते हैं, पांचवी गाथा में, तो पांचवी गाथा में जब आगम का सेवन किया कहा तो इसमें आगम भी आ गया और अध्यात्म का विषय भी आ गया। तो क्यों? क्योंकि कभी भी हम आगम में से ही अध्यात्म में जाएंगे। जरा थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे घर में कोई भी हम फ्रूट लाते हैं तो बोलो डायरेक्ट कभी भी ऐसा होता है कि फ्रूट डायरेक्ट ही हमें मिल जाता है? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। आप समझे? जैसे जैसे नारियल का पानी पीना हो तो हमें नारियल के अंदर नारियल का पानी मिलेगा। जैसे हमें मौसम्बी खानी हो तो कहते हैं कि मौसम्बी का छिलका बाहर में देखेंगे और उसके माध्यम से हम अंदर में मूल मौसम्बी का जो मावा रहता है, मेन घर, तो कहते हैं कि वो उसका ज्ञान होगा और छिलका निकालने पर हमें वो रस की उपलब्धि होती है। ठीक इसी तरह जितने भी हमें ये फ्रूट दिखाई देते हैं तो कोई ना कोई कवर में है, तो कवर का ज्ञान भी इतना ही आवश्यक होता है। बिना कवर अंदर में जो माल है वो बिना कवर के ज्ञान, कवर का जो ज्ञान है नहीं होगा तो वो माल तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी तरह हमारे पास अगर आगम की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो हम अध्यात्म में डायरेक्ट कभी भी पहुंच सकते नहीं है। इसलिए आगम का सेवन, आगम छह द्रव्य क्या, उसकी वस्तु व्यवस्था क्या, उसका वस्तु बंधारण क्या, बराबर, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या, कर्ता कर्म क्या, तो इस प्रकार से ये विषय समझे बिना कोई डायरेक्ट शुद्धात्मा की चर्चा करके आत्मा की अनुभूति कर ले तो बात प्रॉब्लम ये आती है कि उसका मूल से मिथ्यात्व नहीं जाएगा। इसलिए मूल से मिथ्यात्व को गलाने के लिए आगम का ठोस ज्ञान अवश्य जरूरी है, कार्यकारी है। किंतु यहाँ पर सिर्फ आगम ज्ञान से आत्मा की अनुभूति कभी नहीं होती है। आगम पूर्वक अध्यात्म में प्रवेश करने पर शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। इसलिए हमारे पास ये श्रुत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान के माध्यम से मुख्य गौण की व्यवस्था करके आगम के विषयों को गौण करके, विषयों को गौण करना मतलब क्या, आगम जो शैली से, जो नई से जो बताता है उस नई को गौण करके और परम शुद्ध निश्चय नई के विषय को मुख्य करके ही हम अध्यात्म को अच्छी तरह से साध सकते हैं। इस प्रकार से हमने बहुत शॉर्ट में कहने का मतलब ये आगम अध्यात्म पद्धति क्या और यहाँ पर आगम में से अध्यात्म कैसे आए, उन सबका यहाँ पर निरूपण देखा हमने, बराबर। अभी देखो दूसरा एक प्रश्न आया हुआ है कि 2000 सागर में मनुष्य पर्याय कितनी बार मिलती है। यह प्रश्न बहुत चलता है समाज के अंदर और ऐसी एक धारणा बन गई है, बहुत बहुत धारणा ऐसी बन चुकी है कि हमें मनुष्य पर्याय 48 बार मिलती है। 2000 सागर में हमें मनुष्य पर्याय 48 बार मिलती है, लेकिन हकीकत में इस प्रकार का कथन जिनागम में 48 बार वाला मिलता नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। अभी देखना, बात ऐसी है कि कितनी बार मिलती है तो उसकी संख्या इस प्रकार से नहीं निकालिए। जिनागम के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि उसके बारे में क्या कहा है। अभी देखो, एक ऐसी होती है कि एक भव स्थिति की चर्चा आती है और एक काय स्थिति की चर्चा आती है। आप लोगों को पता होगा, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना है ना ये सब बातें, भव स्थिति, काय स्थिति, बराबर है। अभी देखो, भव स्थिति और काय स्थिति का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पर कहते हैं कि एक भव की जो पर्याय मिलती है एक भव के लिए, तो कहते हैं कि उसकी कितनी अवस्था, कितनी आयु, तो ये भव स्थिति वाली बात हो जाती है। और वही जो पर्याय, वही का अर्थ यहाँ पर गति की अपेक्षा से, जैसे कि यहाँ मनुष्य पर्याय हमारी चल रही है तो ये एक मनुष्य की पर्याय की स्थिति कितनी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कोई 50 साल जिया तो 50 साल की, 80 साल जिया तो 80 साल की, तो ये भव स्थिति की चर्चा हो गई। लेकिन जब हम मनुष्य पर्याय की हम काय स्थिति की चर्चा करेंगे तो मनुष्य पर्याय की काय स्थिति की चर्चा जिनागम के अंदर आई है, तत्वार सूत्र में, सर्वार सिद्धि ग्रंथ वगैरह में इसकी चर्चा आई हुई है। तो 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्योपम, इस प्रकार की उसकी चर्चा आई हुई है। फिर से मैं बोलता हूँ, 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्योपम वाली जो एक स्थिति बताई जाती है तो वो मनुष्य पर्याय की काय स्थिति की अपेक्षा से उसकी चर्चा आई हुई है। उसके अंदर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य की पर्याय जो हमें प्राप्त हुई है
उसके बाद अगर दोबारा मनुष्य होता है तो कहते हैं कि उसके बाद और मनुष्य पर्याय मिलेगी, इसके बाद और मनुष्य पर्याय मिलेगी, उसके बाद और। तो जब तक लगातार वो मनुष्य पर्याय धारण करता है तो लगातार जितनी मनुष्य पर्याय धारण करेगा उसकी पूरी एक स्थिति को काय स्थिति कहने में आता है। एक ही पर्याय धारण करने के बाद अगर वो मतलब मनुष्य को छोड़कर अन्य गति में चला जाता है तो फिर वो काय स्थिति मतलब वहां मतलब वो नहीं घटित होगी। लेकिन उत्कृष्ट अपेक्षा से काय स्थिति कितनी घटित करेंगे? उत्कृष्ट अपेक्षा से अगर कोई जीव मनुष्य और मनुष्य ही बनता रहे तो कितना काल तक बनता रहता है? तो 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्योपम, इस प्रकार की स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है, मनुष्य में से मनुष्य बन सकता है। बराबर। अभी देखो, अभी ये 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्योपम किया ना, तो उसके अंदर ये 47 और ये एक 3 पल्योपम वाला भाई, तो इस प्रकार से काउंटिंग कर दिया 48 भाव का। लेकिन इस प्रकार से नहीं इसलिए बैठता है। अभी मैं आपको पूछता हूं कि अभी हमारा जैसे कि 47 और एक 3 पल्योपम वाला भाव, तो टोटल हम 48 भाव गिनेंगे, तो क्या ऐसा होगा कि हर भाव हमारा एक एक कोटि पूर्व का ही होगा? क्या ऐसा होता है क्या? अभी वर्तमान में हम स्वयं पंचम काल में है, तो क्या पंचम काल के जीवों के भी वर्तमान में 1 कोटि पूर्व की आयु है क्या? तो क्या यहाँ पर वर्तमान में 1 कोटि पूर्व वाली आयु नहीं है, फिर भी हमारी मनुष्य पर्याय तो है ना। तो कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय 25 साल, 50 साल, 70 साल के, 80 साल, 90 साल, 100 साल। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये भी यहाँ पर एक पर्याय ऐसी छोटी पर्याय मिलती है कि नहीं मिलती है? अभी मान लो कि ये एक छोटी पर्याय भी 50-100 साल वाली मिली, तो आप कल्पना करो कि 1 कोटि पूर्व के अंदर अगर इस प्रकार से छोटी छोटी पर्याय भी मिले तो कितनी पर्याय हो जाती है मनुष्य भाव की, मतलब कि कितने मनुष्य भाव हो जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। मैं क्योंकि आप लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए हमें फेस रीडिंग भी हमें पता नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि मुझे मतलब वापिस बताना कि आगे चलना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कहने का मतलब। यानी यानी जिस तरह आप बता रहे हो ना, तो ये थोड़ा नया विषय है, तो उसको थोड़ा खुलकर बताइए कि 3 हाँ। पल्योपम क्या है, हाँ 47 बरोबर है, कोई बात नहीं है। અને जैसे આ देखो, બધી આ हाँ પર્યાપ્ત ને બધી પર્યાપ્ત, આમાં પર્યાપ્ત જ લેવાની ને પર્યાપ્ત મનુષ્ય સ્થિતિ। हाँ, देखो देखो यहाँ पर देख लो, पहले 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 जो थोड़ा बेसिक पहला समझ लेते हैं। जैसे शास्त्र के अंदर जैसे कि एक मनुष्य गति का जीव है और एक तिर्यंज गति का जीव है, तो मनुष्य गति और तिर्यंज गति के अंदर क्या हो जाता है कि भव स्थिति और काय स्थिति में अंतर पड़ जाएगा। मतलब भव स्थिति अलग हो जाएगी और उसकी काय स्थिति भी अलग से निकलेंगी। अगर आप समझना क्या कहना चाहता हूं, बराबर। लेकिन अब देव और नारकी की पोजीशन क्या है कि यहाँ पर देव मरकर देव नहीं होता है और नारकी मरकर नारकी नहीं होता है, इसलिए उन दोनों की तो जो भव स्थिति होती है वही काय स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि वहां उसके बाद उसको वापिस देव काया तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए उसकी भव स्थिति और काय स्थिति जने कैसे मतलब समान हो जाती है। लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों में ऐसा नहीं है। मनुष्य और तिर्यंचों की ऐसी व्यवस्था है कि मनुष्य के बाद वो मनुष्य में भी जन्म ले सकता है और तिर्यंच गति का जीव भी तिर्यंच के बाद तिर्यंच गति में जन्म ले सकता है। तो कहते हैं कि एक मनुष्य का भाव के अंदर जो उसकी स्थिति होती है उसको भाव स्थिति कहते हैं, और बार बार जहां तक वो मनुष्य भाव धारण कर सकता है उतनी स्थिति को काय स्थिति कहते हैं। अब यहाँ पर बात ऐसी होती है कि वो जो काय स्थिति जो होती है उसकी भी उत्कृष्ट अपेक्षा से स्थिति बताया जाता है। तो उत्कृष्ट अपेक्षा से उसकी स्थिति कितनी बताइए, तो क्योंकि 47 कोटि पूर्व अधिक 3 पल्योपम, इस प्रकार की स्थिति बताइए। क्यों? क्योंकि 3 पल्योपम, ये पल्योपम की आयु कहां पर देखने में आएगी, तो कि भोग भूमि में देखने में आएगी। जैसे जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि है, तो यहाँ पर 1 पल्योपम, 2 पल्योपम और 3 पल्योपम। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 पल्योपम की बहुत बड़ी होती है, मतलब कि आयु वहां पर उसको भोग भूमि के अंदर देखने में आएगी। और कोटि पूर्व वाली जो आयु है वो हमारी अपनी ये कर्म भूमि के अंतर्गत यहाँ पर कहने का मतलब देखने में आएगी। फिर कोटि पूर्व से अधिक वहां से लेकर, अभी उसमें मुझे विस्तार नहीं करना है, कहने का तात्पर्य क्या है, अभी एक कॉमन बात चल रही है। तो इस प्रकार से अभी देखो 1 कोटि पूर्व
तो 1 करोड़ पूर्व, बराबर है कि नहीं? तो अभी ये पूर्व 1 कोटि पूर्व, मतलब एक पूर्व भी कितना बहुत बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब एक पल्योपम के असंख्यात में भाग में तो असंख्यात कोटि पूर्व चला जाता है, और एक पूर्व के अंदर 70,56,000 करोड़ साल आ जाता है। आप कल्पना करो, तो इसके अंदर ये कहने का तात्पर्य है कि ये 50 साल 100 साल वाला मनुष्य बनेगा, फिर वापिस समझ लो कि ऐसा वही मनुष्य का अवतार लेकर वापिस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कहते हैं कि वापिस भरत क्षेत्र में आकर वो 50-100 साल वाला मनुष्य बन सकता है, वापिस यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाएगा तो वहां पर थोड़ी बड़ी आयु लेकर भी वहां पर जन्म लेगा, वापिस विदेश क्षेत्र में जाएगा, वापिस ऐसा हो सकता है कि वहां से भोग भूमि में चला जाएगा तो पल्योपम की आयु भोगेगा, वापिस वहां से वापिस विदेश क्षेत्र में आकर मनुष्य हो सकता है, वापिस यहाँ पर कहते हैं कि कर्म भूमि के अंदर ऐरावत क्षेत्र में आकर वो मनुष्य बन सकता है, वापिस यहाँ पर ऐरावत में से वापिस वो भरत क्षेत्र में आकर मनुष्य बन सकता है, वापिस वो यहाँ से भोग भूमि में जाकर मनुष्य बन सकता है। तो कहते हैं कि वो लगातार मनुष्य 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 बनता जाएगा। तो क्या कितने काल तक वो मनुष्य का मनुष्य बना रहेगा? तो आचार्य देव ने यहाँ पर भव की चर्चा कहीं पर भी नहीं की है, आचार्य देव ने टोटल काय स्थिति की चर्चा की। इसका अर्थ ये हो गया कि मनुष्य में से मनुष्य बनेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मनुष्य पर्याय में से दूसरी मनुष्य पर्याय मिली, उसके बाद हो सकता है कि उसके बाद कट हो जाता है और दूसरी पर्याय, मतलब कि दूसरी गति की पर्याय अगर धारण कर सकता है, बराबर कि नहीं? तो ये 2 भव हो गए, कंटिन्यूटी में 2 भव हो गए, बराबर। और अगर समझो कि भव मिलते रहे तो कहते हैं कि यहाँ संख्या तो भव लाखों हजारों लाखों भव उसको मनुष्य पर्याय के मिल सकते हैं। ये मैं मिल सकते हैं शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि करणानुयोग है, तो उसके अंदर इतना पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप 2000 सागर जो लेते हो तो उसमें 2000 सागर के अंदर कुछ अधिक, ऐसा जो त्रस पर्याय का काल बताया, तो कुछ अधिक वाला जो मामला है उसके अंदर उसको मनुष्य भी बनना है, उसको मतलब तिर्यंश भी बनना है, और उसको ये भवंतरिक वाले का भी नंबर लगाना है। तो ये सबको क्यों? क्योंकि वो जो 1200 समथिंग सागर बताया वो तो स्वर्ग के बताए, तो ये भवंतरिक वाले का भी इसके अंदर गिनती गिनना कुछ अधिक में। तो इस कुछ अधिक के अंदर इसको हजारों लाखों भव भी मनुष्य के मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही भव मिले। ऐसा देखो, ये गंभीरता भी है ना, तो साथ में करणानुयोग तो वो भी बात करेगा। तो क्योंकि एक भव ही मिले और फिर उसको मतलब के दोबारा टाइम लग जावे, ऐसा भी कहने का मतलब हो सकता है। कुल मिलाकर बात है कि कोई 48 हो सकता है कि 48 ही मिले और इसको फिर मतलब के एक इंद्रिय में जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 48 ही मिलते हैं ऐसा नहीं है। मतलब बहुत इस प्रकार से सैकड़ों भव भी उसको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर खुलासा किया जाता है। सर्वार सिद्धि के अंदर है तो यह सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व वाला जो प्रकरण है उसके अंदर यहाँ पर वो प्रकरण उसके अंदर आपको मिल जाएगा। हर एक की काय स्थिति आपको मतलब के मिल सकती है। जैसे हम आपको बतावे कि एक इंद्रिय की बोलो भाव स्थिति जगन्य कितनी हो सकती है और एक इंद्रिय की काय स्थिति उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, बोलो कौन बताएगा? ये साथ में आपकी एग्जाम हो गई। वैसे तो 18वें भाग के वो बात आती है, इसमें ये बात लगेगी उसका जन्म मरण। हाँ मतलब आप एक इंद्रिय की काय स्थिति सुनो, एक इंद्रिय की काय स्थिति निकालनी है ना, तो कैसे निकालोगे और उसकी उत्कृष्ट काय स्थिति कैसे निकालोगे? अडिपुद्गल परावर्तन काय स्थिति एक मैं इंद्रिय, एक इंद्रिय की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं ये थोड़ा भाव समझना चाहते हैं कि आप हाँ कोई बात नहीं। देखो एक इंद्रिय का है ना, तो जैसे हो सकता है ना कि एक इंद्रिय में जाकर वो ऐसा हो सकता है कि अंतर्मुहूर्त ही वो रहा और अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वो 2 इंद्रिय में चला गया या तो 5 इंद्रिय में चला गया, बराबर के नहीं? तो ऐसा हाँ। उसका अंतर्मुहूर्त बनेगा। लेकिन अभी उसकी समझो कि उत्कृष्ट काय स्थिति कैसे निकालोगे? तो एक इंद्रिय की असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अनंत काल बोलेंगे ना उनको। बराबर पुद्गल परावर्तन तो निगोद की होती है, निगोद में रहने का काल है ढाई पुद्गल परावर्तन। पर वो भी एकेंद्रीय है ना भाई साहब? क्या वो भी तो एकेंद्रीय है, उसकी नहीं, अपेक्षा भले से अनंत काल एक इंद्रिय में है, लेकिन हमने निगोद की नहीं पूछे ना। देखो करणानुयोग में हर शब्द का वो अलग अलग रहेगा।
जैसे कि मतलब आचार्य देव ने इस प्रकार से बताया है कि आप देखो एक इंद्रिय की कितनी रहेगी, तो एक इंद्रिय में सब आ जाएंगे, मतलब निगोद भी आ जाएगा और एक इंद्रिय में पृथ्वी काई में भी, क्योंकि ढाई समझो असंख्यात पुद्गल परावर्तन में सिर्फ एक ही जगह पर, मतलब एक इंद्रिय के भी अनेक वैरायटी है ना, तो वो एक में ही रहेगा ऐसा नहीं है, जैसे कि वो पृथ्वी काई में ही रहेगा या तो जल काई में रहेगा या तो निगोद में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। सब मिलाकर एक इंद्रिय की जितनी भी वैरायटी है ना, वो सब मिलाकर एक इंद्रिय और एक इंद्रिय, एक इंद्रिय और एक इंद्रिय, एक इंद्रिय और एक इंद्रिय, तो इस प्रकार से असंख्यात पुद्गल परावर्तन मतलब हो जाता है, और उसके अंदर ये ढाई पुद्गल परावर्तन शामिल है। कहने का तात्पर्य ये है, तो ये उसकी इतनी बड़ी लंबी यहाँ पर काय स्थिति गिनने में आती है। आप समझे? मेरे ख्याल से ख्याल आ गया होगा जो कहना चाहता है। नीलेश भाई, हाँ, तो 2000 व्यवहार में आ गए, नीलेश जो भाई, जीव एक तो व्यवहार में प्रश्न आ गया है। उसका पूछ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ, नित्य बोलिए। निगोद का संगीता, नहीं पूछ रहे। हाँ संगीता बेन बोलो। तो वो 2000 सागर में असंख्यात पुद्गल परावर्तन आ जाते हैं, एक ये अरे प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आप थोड़ा समूर्छिन मनुष्य पर्याय और ये समूर्छिन का भी थोड़ा बता दीजिए यहाँ पर। वो एक अलग से प्रश्न हो गया, मैं बता देता हूँ, बराबर ना, ये एक नई फाइल खुल गई, आप समझे? अभी देखो यहाँ पर बात ऐसी है, हाँ अभी सुनो कि ये जो मनुष्य पर्याय है ना, एक अच्छा प्रश्न बेन ने आया किया, वो मेरे मगज में भी दूसरी बात भी साथ में आई ये प्रश्न के साथ, कि अगर आप मनुष्य पर्याय की जब लेते हो ना, तो उसके अंदर ये समूर्छन पर्याय भी आ गई। आप समझो क्यों? क्योंकि सवाल मनुष्य गति का है ना, क्योंकि समूर्छन मनुष्य भी मनुष्य गति बांध कर आया है। अरे वो तो छोड़ो, वो संगनी पंचेंद्री बांध कर आया है, संगनी पंचेंद्री पना मनुष्य लेकर, मतलब मनुष्य होकर यहाँ पर आया है, और उसकी जो काय स्थिति होती है तो उसके अंदर ये मनुष्य पर्याय की जो अपर्याप्त दशा, क्योंकि वो समूर्छन मनुष्य अपर्याप्त होता है, क्योंकि वो भी साथ के अंदर मतलब के काउंटिंग हो जाता है, तो इस प्रकार से उसकी वो काय स्थिति के अंतर्गत गिनने में आ जाती है, ऐसा कहने का मतलब। बराबर कहने का मतलब? हाँ हाँ। और शांतिबाई को महत्व, शांतिबाई आप फिनिश कर दीजिएगा। शांतिबाई पूछे उसके पहले संगीता बेन का दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप देना, वो मैं भी पूछना चाहती थी कि इतने भाव आ जाते हैं असंख्यात पुद्गल 2000 सागरों परावर्तन पर। क्या, असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्या 2000 सागर में आ एक जाता है? सागर में, हाँ सागर में कितने आ जाते हैं? बेन परावर्तन बहुत बड़ा है, परावर्तन अभी क्या बतावे, मतलब के एक पुद्गल परावर्तन के अनंत भाग में अनंत सागर आ जाते हैं, इतना बड़ा परावर्तन है। ये तो कोने में पड़ा है, 2000 सागर तो परावर्तन के सामने वो तो कोने में पड़ा है बेन, कुछ भी नहीं है वो तो यार। हाँ, तो वो तो पर कुछ अभी भी आपने बताया मतलब ना फिर भी कि समझने के लिए सब लोग को वहां बराबर है, मतलब के उसकी मतलब के बहुत बहुत कम राशि है, मतलब परावर्तन जो शब्द जब प्रयोग करते हैं ना, पुद्गल परावर्तन, ये तो पुद्गल परावर्तन की बात है, तो उसके अंदर ये सागर तो तैरते हैं, मतलब बहुत सागर आ जाते हैं। नहीं, कहने वो का मैं तात्पर्य, वो कुछ मुझे अनुमान था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा, नहीं क्योंकि अच्छा आपने किया। कहा कि एक इंद्रिय की पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, तो मतलब हाँ। वो तो फिर अपन वी आर गोइंग मोर देन 2000 सागर मेनी टाइम्स। हाँ मतलब नहीं, आप इसको मिक्स न करें, मतलब 2000 सागर का एक एरिया, मतलब 2000 सागर का जो माप है ना, वो त्रस पर्याय का है, बराबर है कहने का मतलब। अभी अभी वो त्रस पर्याय मिलती है 2000 सागर के लिए, वो त्रस पर्याय मिलती है, वो एक टॉपिक अलग हो जाता है। और जो एक इंद्रिय की हम जो स्थिति निकालते हैं, तो मतलब कि वो एक इंद्रिय और एक इंद्रिय, एक इंद्रिय और एक इंद्रिय बना रहेगा, उसको 2000 से लेना देना नहीं है, उसको हम थोड़ा साइड पर कर देते हैं, तो एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय बनता रहेगा, तो कितना उत्कृष्ट अपेक्षा से बन सकता है, तो क्योंकि असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक ये एक इंद्रिय के और एक इंद्रिय में रह सकता है, ऐसा कहने का मतलब। बराबर, कोई आप ऐसे पूछे कि वो त्रस में कितना रह सकता है, तो देखो देखो सुनो कि त्रस में अभी मैं दूसरा एक अच्छा बात मैं आपको बताता हूं, जैसे काय स्थिति होती है ना, जैसे त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल कैसा आचार्य देव ऐसे बताते हैं, तो फिर आपको 2000 सागर बताना पड़ेगा। और अभी अभी मनुष्य भी त्रस है और देव भी त्रस है, और तिर्यंश में भी त्रस का भेद है, लेकिन अभी आप ऐसा बोलोगे कि मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल कितना, तो वो क्वेश्चन बदल जाता है, त्रस का क्वेश्चन अलग हो जाता है, मनुष्य का क्वेश्चन अलग हो जाता है, एक इंद्रिय का क्वेश्चन अलग हो जाता है। और मैं बताता हूँ आपको, आप पृथ्वी काय का भी आपको अलग मिलेगा शास्त्र के अंदर, और जल काय का भी अलग मिलेगा, मतलब उसकी भी एक अलग से सिस्टम है, तो फिर वो अलग 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 दिशा में जाएगा। लेकिन एक इंद्रिय बोल जाते हैं तो पूरा ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, और
और त्रस पर्याय बोल जाते तो जितने 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वो उसका पूरा ग्रुप आ जाता है। फिर इसके अंदर जाओगे तो ये मनुष्य सबका मतलब सबका अलग 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 रीत से अपना अपना एक क्राइटेरिया है। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है कि मतलब कि 2000 सागर आपको जो त्रस मिला है ना, तो अभी त्रस के अंदर भी मतलब कि सबका कोटा फिक्स है। कहने का मतलब आप पूरा का पूरा त्रस पर्याय के अंदर पूरा का पूरा 2000 सागर आप 2 इंद्रिय में ही निकालोगे, ऐसा भी नहीं बनेगा। देखो एक अच्छी बात मगज में आई, आप पूरे की पूरी त्रस पर्याय में आप 3 इंद्रिय का निकालोगे, ऐसा नहीं बनेगा। पूरे का पूरा आप पंचेंद्रिय ही बनोगे तो क्या ऐसा भी मतलब पंचेंद्रिय बनोगे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी साथ में है, तो उस सबका भी उत्कृष्ट माप सबका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मतलब आप सबको हमें समझना चाहिए। समझ गए? तो हाँ, पर वो थोड़ा सा डाउट ये था कि जो निगोद की अवस्था में जाना पड़ता है मैक्सिमम 2000 सागर के बाद, तो आई थॉट कि वो निगोद अवस्था इज सेपरेट फ्रॉम एक इंद्रिय, क्यों निगोद अवस्था अलग है और वो एक इंद्रिय जो पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय वाली पर्याय है वो इस 2000 सागर में आ जाती है। ऐसा मुझे गलत फहमी होगी। 2000 सागर में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि 2000 सागर हमने त्रस की बनाई है और ये पृथ्वी जल अग्नि ये सब एक इंद्रिय हाँ, है। तो वो सब निगोद में, वो फिर निगोद की कैटेगरी में फिट हो गए वो पूरे, मतलब हाँ, उसके बाद वो बात निगोद ऐसी में होती जाता है कि है जो तब। निगोद है ना, तो वो वनस्पति काय के भेद में फिट हो गया, ऐसा हमें समझना चाहिए। हाँ हाँ, ओके। साधारण वनस्पति है ना, क्योंकि उसको साधारण नाम कर्म का उदय पाया जाएगा, ऐसे कहने का मतलब। और एक इंद्रिय में आप दूसरी वनस्पति लोगों तो ये प्रत्येक वाला भेद होगा, तो फिर उसको उसका उदय पाया जाएगा। लेकिन उन दोनों को एक इंद्रिय का उदय पाया जाएगा। जब जाति अपेक्षा से कर्म का उदय होगा तो वो एक इंद्रिय होगा, और नाम कर्म की जब दूसरी प्रकृति होगी तो उसके अंदर कोई साधारण का उदय वाला होगा और कोई प्रत्येक का उदय वाला होगा। इस प्रकार से डिवीजन होता रहता है, ऐसा समझना चाहिए। ओके। પ્રભાબેન નો હેન્ડ રેઝ હતો। પ્રભાબેન તમારો ક્વેશ્ચન હતો? પ્રભાબેન? हाँ, मैंने 2000 ये जो अपन बोल रहे हैं ट्रस्ट की जो 2000 सागर है, उसमें हो सकता है मेरी गलत फहमी है, पर मुझे ऐसा कभी ख्याल है कि सिर्फ 8 मनुष्य पर्याय मिलती है, ऐसा मैंने सुना। पर हाँ, बात ऐसी है कि जो 8 मनुष्य पर्याय की जो बात आती है ना, तो 8 मनुष्य पर्याय की जब ये मिलती है, जब जीव जब लब्ध अपर्याप्तक होता है, उसका जब भव करता है, जरा सुनना बराबर ना, 66,336 भव करता है। एक अंतर्मुहूर्त के अंदर 66,336 जब भव करते हैं, तो उसके अंदर उसको ये 8 पर्याय लब्ध अपर्याप्तक वाले मनुष्य के भी, समूर्छन मनुष्य के भी वहां पर उसको मिल जाती है। तो इस प्रकार के 8 पर्याय की भी बात आती है। मतलब वो एक अपेक्षा है, अगर आपकी और भी कोई आपने सुना होगा तो मतलब वो मुझे पता नहीं। नहीं, वो मैं समझ में नहीं आई मुझे। तो वैसे मनुष्य जन्म की दुर्लभता की जब बात आती है, तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी चांस 8 ही बार है कि कंटिन्यूस आप मनुष्य जन्म ले सको। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपको ज्यादा 100% ये तो आगम के आधार से चर्चा चल रही है अभी, बराबर ना। तो इसमें 8 ही मिलते ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल डर मतलब सादी भाषा में कहूँ तो ऐसा कोई वो बात नहीं। लेकिन इसलिए गंभीरता और वैराग्य की बात है ना कि ये सब गतियों में सबसे कम भव है ना, मूल बात तो वो है कहने का मतलब। इसका कोटा बहुत कम है, बहुत अभी न गिने बराबर है, ऐसा बोले तो भी ठीक है कहने का मतलब, ऐसा समझना चाहिए। बराबर है? નિલેશભાઈ, એક પેલો જે ચાર્ટ છે કે જીવ નિગોદમાંથી નીકળે પછી એનો આખા ચાર્ટમાં એ રીતે બતાવ્યું છે કે 8 જ વાર મનુષ્ય બહુ મળે અને એમાં એક પછી એક બધા જીવની જે ઉત્પત્તિ થાય છે એક પછી એક આખો ચાર્ટ છે। અને મને આગમનો આધાર જો મોકલાવશો ને તો સારું। કોઈ મૂળ ગ્રંથ હોય ને, જેમ દાખલા તરીકે આ ચર્ચા છે ને તત્વાર સૂત્રની અંદર આવેલી છે, આ ચર્ચા તમને ઘુમટસારમાં મળે અને આ ચર્ચા તમને ધવલામાં મળે। મતલબ આવી રીતે કોઈ મૂળ ગ્રંથના આધાર વાળું કોઈ ચાર્ટ અથવા તો કોઈ એવું વચન મેં એલએમાં આખો ચાર્ટ જોયો તો મેં પિક્ચર પણ લીધું હતું, પણ હવે મારી પાસે હમણાં દેખાતું કોઈ વાંધો નથી। મને મૂળ છે ને ચાર્ટ કરતા પણ મને આગમનો આધાર મળે ને તો મતલબ આચાર્ય દેવ શું વચન કહેવા માંગે છે ને, બરાબર કે તો આપણને બધાને એ સારું પડે। બરાબર કેવાનો મતલબ? ઓલું તો હું તમને ગમે ત્યારે હું તો તમને પછી સપનાબેનને આપી દઈશ 47 કોટી પૂર્વ અધિક 3 પલ્યોપમ કાય સ્થિતિ, એ તો તમને તરત મતલબ મળી જશે એ બધું। બરાબર, પહેલા અધ્યાયની અંદર છે।
હા, હજી એક પ્રશ્ન આના સંબંધી પૂછી શકાય કે ટાઈમ ઇઝ ઓવર? આ સંબંધી હોય તો પૂછી લો આ સંબંધી. હા, તો હવે આપણે ત્રસ પર્યાયનો જે 2000 સાગરોપમનો આપણું એ ગણિત પ્રમાણે જઈએ તો એકવાર ઈ ત્રસ પર્યાયમાં આવી જાય અને પછી જે આપણે 47 કોટી પૂર્વ 3 પલ્યોપમ અધિક જે આપણે વાત કરી હમણાં, તો ઈ એના જે ભાવ છે એક પછી એક એની સેમ ઓલામાં આવે છે ઈ, તો એમાં એવા કેટલા ભાવ ઈ કરી શકે આ ટાઈમ પીરિયડમાં? હા, એટલે એ જ વાત, પ્રશ્ન એ જ હતો કે 2000 સાગરની અંદર એ ઘણા ભાવ કરી શકે છે. એનું લોજિક છે ને કે તમને 47 કોટી પૂર્વ, જો એક બીજી વાત સમજો, એક સારું થયું તમે બધા અત્યારે એક બીજી પદ્ધતિ પણ સમજી લો શાસ્ત્રની, કે શાસ્ત્રની અંદર શું કર્યું છે ખબર છે? શાસ્ત્રની અંદર તો આવી રીતે વાત બતાવી ને, પણ આ એક ગણતરી બી બતાવે. ગણતરી એટલે કેવું કે ભાઈ સમજી લો કે એક એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને ખબર પડે કે ક્ષયોપસમ સમ્યક્ત્વનો કાળ કેટલો બતાવ્યો. ચલો તમને આ બહુ જલ્દી સમજાશે. ક્ષયોપસમ સમ્યક્ત્વનો કોઈને ખબર છે આ સંબંધી ક્ષયોપસમ સમ્યક્ત્વનો કાળ કેટલો બતાવ્યો? હા, ખ્યાલ છે. 66 सागर कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो अभी 66 सागर का काल बताया क्षयोपसम सम्यक्त्व का, बराबर है ना? तो अब आचार्य देव ने क्या किया मालूम है? अभी सरवार सिद्धि में ही है, उसका विशेषार्थ ये फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का है। तो सरवार सिद्धि के अंदर इस प्रकार से बताया कि जैसे क्षयोपसम सम्यक्त्व का जो काल 66 सागर है ना, तो उसमें क्या करेगा कि जैसे 18 सागर की आयु वाला देव होगा, फिर वहां से क्या होगा, एक मनुष्य पर्याय धारण करेगा 1 कोटि पूर्व वाली। एक एग्जाम्पल समझना, वो कम ज्यादा अंतर्मुहूर्त वाला उसको गौण करना, जब उदाहरण में देता हूं आपको। 18 सागर की आयु वाला गया देव, उसके बाद 1 कोटि पूर्व वाला यहाँ पर मनुष्य होगा। उसके बाद यहाँ पर 20 सागर की आयु वाला हुआ देव, उसके बाद 1 कोटि पूर्व वाला हुआ मनुष्य, उसके बाद 22 सागर की आयु वाला हुआ देव, उसके बाद वापिस 1 कोटि पूर्व वाला हुआ मनुष्य। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर फिर आचार्य देव क्या कर देते हैं कि टोटल मिलाकर 66 कहां पर हो जाता है? तो इस प्रकार से एक देव की पर्याय और एक मनुष्य की पर्याय, एक देव की पर्याय, एक मनुष्य की पर्याय, इस प्रकार से टोटल बताते हैं उदाहरण देने के लिए। और फिर मनुष्य पर्याय वाला खड़ा कर देंगे और वहां से फिर उसको क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, तो वहां तक कट ऑफ करेंगे और फिर इतना काल इस प्रकार से 66 सागर का यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताते हैं। तो वहां स्पेशली खुलासा किया हुआ है कि ये तो गिनती करने के लिए उदाहरण के रूप में है, लेकिन कोई 66 सागर वाला कोई 4 ही भव अगर संसार में करता होगा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार 18 सागर की ही आयु उसको देव की मिले ऐसा थोड़ी जरूरी है। वो 2 सागर 1-2 मतलब कि वो 2 सागर की आयु वाला सौदर में इंद्र में भी मतलब कि वो इंद्र में भी चला जाएगा, वो मतलब कि 7 सागर की आयु वाला भी देवगति में चला जा सकता है। यहाँ पर आकर हर बार 1 कोटि पूर्व की आयु भोग ऐसा थोड़ा है, कम ज्यादा भी मतलब के हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये गिनती करने की पद्धति अलग होती है और यहाँ पर बताने की पद्धति अलग होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे वहां पर भी ज्यादा भव देव के हो सकते हैं, ठीक इसी तरह से ऐसे गिनाते हैं 47 कोटि पूर्व, लेकिन कोई हर पूर्व हमें कोटि पूर्व वाला थोड़ी मिलती है। अभी यही भव समझो कि आप 47 गिनोगे तो ये तो 50 साल का है, 60-70 साल का है, तो दूसरा और भव ऐड करना पड़ेगा ना। आप समझे क्या कहना चाहते हैं मैं कहने का मतलब? तो इस प्रकार से ऐड करते करते बहुत भव भी हो जाता है, ऐसा हमें इसको कैलकुलेशन में हमें समझना चाहिए। ये चर्चा अभी 5 मिनट में चली, वो समझ में आया अभी मैंने जो बताया वो आपको? हाँ, वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मतलब 66 सागर में सबकी बात बराबर। हाँ 66 सागर में बहुत भाव हो सकते हैं। हाँ बहुत भाव हो सकता है। ऐसे ही 47 कोटि पूर्व के अंदर बहुत मनुष्य के भाव हो सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए, बराबर। और ये जो 66 એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કોઈક એસ છે? हाँ अब 4 मिनट છે આપણી પાસે, એટલે કોઈ હા એક ક્વેશ્ચન કરી દો। એસ કોણ છે? હેન્ડરેઇઝ છે તમારો? ઓકે, એ નથી બોલતા તો મારે જસ્ટ 66 સાગર ની આ વાત મેં સાંભળી છે એ બરાબર છે કે નહીં એ જરા કન્ફર્મ કરવું હતું કે હવે આપણે 66 સાગર ની તો કીધી, પણ 66 સાગર પછી એક અંતર્મુહૂર્ત કમ બીજા 66 સાગર થાય એવી પણ કઈ આ ચર્ચા છે? એક વ્યવસ્થા છે? 66 સાગરમાં અંતર્મુહૂર્ત કમ અને એના પછી સમજો કે પાછા ફરીથી એ 66 સાગર માટે ક્ષયોપસમ સમ્યક્ત્વ કરશે। માની લો કે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં જતો રહ્યો, એવી રીતે ચર્ચા આવે છે।
અને હા, પછી એટલે અંતર્મુહૂર્ત 132 ત્રીજા થઈ જાય, ગુણસ્થાનમાં right? રહીને વળી પાછા 66 સાગર માટે એક સંયુક્ત સમ્યક્ત્વ એનું જોવામાં આવશે. બરાબર બરાબર. હા, તો ઈ મેં સાંભળ્યું હતું સંજીવજી હા. પાસેથી. તો આ રીતે બરાબર. 132 સાગર હા એના હા થઈ હા જાય. હા એવી રીતે પણ ઘટિત કરવામાં આવે છે. હા, બરાબર. Okay. અચ્છા, ચલો આપણે અહીંયા આગળ બસ. હા, બીજા કોઈને કઈ આ સંબંધીનો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી લે. પછી આપણે હવે કાલ, હા સમય થઈ ગયો છે ને, અને કાલથી પછી પાછા બીજા બી ક્વેશ્ચનો આપણે લઈશું. અને જે પણ તમને યાદ આવે તમે મતલબ ચોક્કસ તમે સપનાબેનને તમે મોકલી દેજો, બરાબર કે નહીં? આપણે એના ખુલાસા જોઈશું, બરાબર? હાજી. ઓકે ઓકે. હા હા, તો આપણે અહીંયા કિનવાણી સ્તુતિ લઈ લઈએ. હા. નિલેશભાઈ. क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतो हूँ. जिनवाणी मात मातनो जय हो. जय હા. जय हो.